میری 5 بیٹیاں تھیں۔ شوہر نے کہا اس دفعہ بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، پر ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹی ہی ہے۔ طلاق کے ڈر سے اسے یتیم خانے کے جھولے میں رکھائی۔ 15 سال بعد چھوٹا دیور ایک 14 سالہ لڑکی کو بیاہ لایا، پر شادی کی رات ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے اس کی بیوہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ میں نے بھی اجازت دے دی، پر جب اس لڑکی کو دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ دور جہالت سے شروع ہوا۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں بیٹی کی اہمیت کو کھل کر اجاگر کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی اعلیٰ مثالیں بھی ہمارے ذہنوں سے اس جہالت کو نکال نہیں پائیں، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ میری 4 بیٹیاں تھیں۔ شوہر نے کہا اس دفعہ بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، پر ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹی ہی ہے۔ طلاق کے ڈر سے میں اسے یتیم خانے کے جھولے میں رکھائی۔ 15 سال بعد چھوٹا دیور ایک 14 سالہ لڑکی کو بیاہ لایا، پر شادی کی رات ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے اس کی بیوہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ میں نے بھی اجازت دے دی، پر جب اس لڑکی کو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری 5ویں بار جب میں امید سے ہوئی، میں نے یہ اپنے شوہر سے بات چھپائے رکھی کہ میں امید سے ہوں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بیٹے کی دعائیں مانگتی رہی، لیکن چوتھے ماہ میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا۔ کہنے لگا اب میرا صبر جواب دے گیا ہے، اب کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اپنی بچیوں سمیت میرے گھر سے نکل جانا۔ میں نے 5ویں بچے کی بار الٹرا ساؤنڈ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس بار بھی بیٹی ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ بچی کو مردہ ثابت کر دوں گی۔ اگر اس بار بھی بیٹی کی خبر سامنے آ گئی تو میرا گھر اجڑ جائے گا۔ بے شک میں کوئی خوش و خرم زندگی نہیں گزار رہی تھی، لیکن ایک پناہ گاہ تو میرے پاس موجود تھی، وہ تھی میرے شوہر کا گھر۔ میں 5 بچیوں کے ساتھ اپنے غریب ماں باپ کے پاس کیا جاتی اور ان پر کیسے اپنا اور اپنی بچیوں کا بوجھ ڈالتی؟ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب بھی یہ خیال آتا کہ اپنی بیٹی کو یتیم خانے میں دے دوں تو میری روح کانپ اٹھتی۔ کیسے اپنے جگر کے گوشے کو بے سہارا کر دوں، اسے اس کے رشتوں سے محروم کر دوں۔ لیکن جب یہ سوچتی کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو 5 بچیوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی، تو دل دہلنے لگتا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے لیبر روم جانے سے پہلے ایک نرس کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ بچی کی پیدائش کے بعد وہ میری بیٹی کو میرے شوہر اور ساس کے سامنے مردہ کہہ دے اور باہر سب کو سچائی سے انجان رکھے۔ میری پچھلی 4 بیٹیاں بھی یہی ہوئی تھیں، اس لیے وہ نرس میرے حالات سمجھتی تھی۔ اس نے بچی کی پیدائش کے بعد باہر جا کر میری بیٹی کے مرنے کی خبر سنا دی۔ میرے شوہر اور ساس نے تو شکر ادا کیا تھا، مجھے وہیں چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے گئے کہ جب چھٹی ہوگی تو لینے آ جائیں گے۔ ان کی آخری امید بھی مجھ سے ختم ہو چکی تھی کہ اب تو مجھے بیٹا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے روز مجھے شوہر کا فون آیا کہ ہاسپٹل کے بل میں نے بھر دیے ہیں، رکشہ پکڑ کر گھر خود آ جاؤ۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری ناز برداریاں کروں گا۔ اچھا ہوا جو یہ منحوس مر گئی۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بے مروتی جانتی تھی، اس لیے بچی کو لیے ایک یتیم خانے کے جھولے میں ڈالنے لگی تو دل تڑپ کر رہ گیا۔ میری ممتا نے بے اختیاری سے اپنی بچی کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا، لیکن میں ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے بس اور مجبور عورت بھی تھی۔ اپنی بچی کو چاہ کر بھی اپنی ممتا نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اسے جھولے میں ڈال کر پلٹ گئی۔ میری بچی رونے لگی۔ جھولے میں لیٹتے ہی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے پلٹ کر اسے آخری بار دیکھا تو آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دل نے کہا کیسی ماں ہو تم؟ اپنی بچی کو ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث چھوڑ کر جا رہی ہو؟
कल को खुदा को क्या जवाब दोगी? लेकिन दिमाग ने कहा कि अगर अपना घर बसाना है और 4 बच्चियों को पालना है तो ममता का गला घोंट दो और वापस चली जाओ। मैं कभी इसे रोता हुआ देखती, कभी अपने बारे में सोचती। मेरी बेबसी मेरी ममता के सामने जीत गई थी। मैं वापस पलट गई और रोते हुए बाहर निकलकर रिक्शे में बैठ गई, क्योंकि मेरी बेबसी मेरी बच्ची की सिसकियों से बढ़कर थी, इसलिए पीछे पलट कर भी नहीं देखा। मुझे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी याद आने लगी। मेरी मुश्किलात तभी से शुरू हो गई थी जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई, जब मेरे घर पहली बेटी पैदा हुई। मेरी सास ने मुझसे कहा कि पहली बेटी बाप पर बोझ होती है। मेरे शौहर का बेटी का सुनकर ही पहले से ही मुंह बना हुआ था। अपनी माँ की बात सुनकर वो मुझे यूं घूरने लगे जैसे बेटी का पैदा होना मेरा कसूर हो। मेरी सास के 3 ही बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी, और उसके घमंड का ये आलम था कि उसका इतराना ही ख़त्म नहीं होता था। बेटियों की पैदाइश को वो खुदा की रज़ा के बजाय अपना कमाल समझती थी। मेरी बेटी की पैदाइश पर मेरी सास ने मिठाई तक ना बांटी। कहने लगी, बेटा होता तो मेरा वारिस होता, तब मैं सारे मोहल्ले में मिठाई बांटती। मेरे 3 बेटे हुए थे और मेरी सास ने मनों के हिसाब से मिठाई बांटी थी। भला बेटी होने पर कौन मुंह मीठा कराता है? जब मेरी शादी हुई तब मेरा छोटा देवर 12 बरस का था, बीमार और लागर सा था। हर वक्त दवाएं मेरी सास उसे ला कर देती रहती थी। बड़ा देवर मेरे शौहर से बस 2 साल ही छोटा था। पहली बेटी के बाद मेरे शौहर को दूसरे बच्चे की जल्दी थी। 1 साल बाद ही फिर से दूसरी बेटी की पैदाइश हो गई। इस बार तो मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ ही उठा डाला, मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए? वो गुस्से से कहने लगा। मेरी सास ने भी बेटे को ऐसा सलूक करते देखकर नहीं रोका। मैंने रोते हुए कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है? कहने लगा, ये कसूर क्या कम है कि तुझसे ये मनहूस पैदा हो रही है? मैं ये सोचने लगी कि इसमें औरत का क्या इख्तियार है, ये सब तो अल्लाह की देन है। अगर औरत के इख्तियार में होता तो जितनी वो बेटी होने पर अजियत और ताने सहती है, कभी भी बेटी पैदा न करती। दूसरी बेटी के बाद मेरी हैसियत ससुराल में एक नौकर से भी बदतर होकर रह गई। सारे घर का काम मेरे जिम्मे लग चुका था। मेरा शौहर अब हर वक्त मुझ पर चीखता चिल्लाता रहता। मेरी और मेरी बच्चियों की बस खाने पीने की ही जिम्मेदारी पूरी करता, बाकी उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं घर के कामों से फारिग होकर लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। उसी के पैसों से मैं बच्चों के और अपने जूते खरीदती, कपड़े खरीदती। उन्हीं दिनों मेरे दूसरे देवर की शादी भी हो गई। उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ तो मेरी हैसियत और भी कम हो गई। मेरा शौहर भतीजा होने पर बहुत खुश था। मेरी सास के बाद घर पर दूसरी अहमियत मेरी देवरानी को मिलने लगी और मुझे यूं हकारत से देखा जाता जैसे मैं कोई नीच या घटिया हूँ। मेरा शौहर अपने भतीजे को ही प्यार करता, उसके नाज नखरे उठाता रहता। जिस मोहब्बत पर मेरी बेटियों का हक था, मेरा शौहर वो दूसरों की औलाद पर निछावर करता रहता। पहले तो मेरा शौहर सिर्फ मुझ पर हाथ उठाता था, अब अगर उसे मेरी बेटियां सहन में खेलती कूदती नजर आ जाती, उससे चिपकने लगती थीं। वो उन्हें बुरी तरह से डांट देता कि अपने कमरे में जाओ और अपनी माँ के पास ही रहा करो। मेरी बेटियां बाप से डरने लगी थीं। जैसे ही वो घर आता, वो सहम कर कमरे में बैठ जाती। हर वक्त मेरा शौहर मुझे और उन्हें घूर कर देखता रहता, जैसे पैदा होकर उन्होंने कोई जुर्म कर दिया है। जब मैं तीसरी बार उम्मीद से हुई तो मेरा शौहर और सास मुझे पीरों और आमिलों के पास ले गए ताकि मुझे बेटा हो जाए। गले में तावीज़, पेट पर तावीज़ बांधने के लिए दिए, पीने के लिए तावीज़, पढ़ने के लिए थकात देने वाले वज़ाइफ। मैंने सब कुछ किया, लेकिन तीसरी बार भी बेटी ही हुई। इस बार भी इल्ज़ाम मुझी पर लगा कि मैंने वज़ाइफ पढ़ने में कोताही की होगी। मेरी सास हर वक्त मुझे बेटियों के ताने देती रहती, कहती, तूने मेरे बेटे की कमर तोड़ कर रख दी है। देख, मैंने 3 बेटे पैदा करके अपने शौहर की नस्ल को बढ़ाया है, लेकिन तू खुद ही नहीं चाहती कि तुझे बेटा हो। मेरा बेटा तो कम बख्तों को जहेज दे देकर पूरा हो जाएगा। मैंने एक चुप सी साध ली थी। बड़ी दोनों बच्चियों को मैंने स्कूल में डाल दिया।
मेरा शौहर उन्हें देखना तक गवारा न करता। वक्त यूं ही गुजरने लगा। चौथी बार जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि मैं इसकाते हमल करवा लूं। मैंने इनकार कर दिया कि मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। कहने लगा, तू सिर्फ बेटी ही पैदा कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी औलाद और ना ही हो। मैंने फिर भी इनकार कर दिया तो इस बात पर मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि चौथी भी बेटी ही हुई, इसलिए अगली बार तलाक की धमकी दे डाली। लेकिन मेरे शौहर की हर धमकी, जुल्म, ज्यादती मुझसे बेटा ना पैदा करवा सकी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेइख्तियार थी। इसलिए 5वीं बेटी को मैं मजबूरन एक यतीम खाने में डाल आई। वक्त गुजरने लगा, 15 साल बीत चुके थे, लेकिन वो बच्ची मेरी आंखों के सामने ही रहती थी। मैं रोज़ उसे याद करके रोती थी। मेरी बेटियां मुझसे रोने की वजह दरियाफ्त करती तो मैं टाल जाती, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा वारसों के होते हुए लावारिस वाली ज़िंदगी जी रहा था। 15 साल के बाद भी मेरा ज़ख्म हरा ही रहा। मेरी ममता अपनी उस बच्ची के लिए तड़पती ही रहती। मेरी सास अब मर चुकी थी, मेरी बच्चियां जवान हो चुकी थीं, मेरी बेटियां कॉलेज में थीं, घर को संभालने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई में भी माहिर थीं। अपनी कॉलेज की और दीगर अखराजात वो खुद उठा रही थीं। मेरा छोटा देवर बचपन से ही बहुत बीमार सा रहता था। हर वक्त बुखार, कभी सर दर्द, कभी सांस का रुक जाना। ना तो वो कोई काम करता था, ना ही उसे कोई काम होता था। मेरे शौहर के रवैये में ज़रा भी बदलाव नहीं आया था, वो अब भी वैसा ही था। मेरी बेटियां अब भी बाप के सामने सहम जाती थीं। मुझे अपनी 5वीं बेटी शिद्दत से याद आती थी। उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने था तो दिल में तड़प सी जागी कि देखूं तो सही कि मेरी बेटी कैसी हो गई होगी। मैं अगले ही रोज़ उसी यतीम खाने गई, उन्हें दिन, तारीख, साल बताया और पूछा कि झूले में एक बच्ची मैंने रखी थी, वो कहाँ है। 14 साल गुजर चुके थे। उस औरत ने रजिस्टर खोला और मुझ पर एक धमाका कर दिया। उसका अभी 1 घंटा पहले निकाह हो गया। मैंने पूछा किससे हो गया। उन्होंने एक पता पर्ची पर लिखकर मुझे पकड़ा दिया, लेकिन मेरे लिए वो पर्ची बेमानी सी थी। मैंने वो पर्स में डाल ली और नाउमीदी से घर लौटी थी, लेकिन घर पर एक हंगामा बरपा था। देखा तो मेरा छोटा देवर एक कम उम्र बच्ची से निकाह करके उसे घर ले आया था। मेरे शौहर और दूसरे देवर ने कहा कि पहले हम तुम्हारा बोझ उठाते हैं, वो क्या कम था जो अब तुम्हारी बीवी बच्चों को भी हम लेंगे। वो कहने लगा, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, ये मेरी बीवी है तो मेरा ख्याल रखेगी। वो बहुत छोटी मासूम सी बच्ची थी, मेरी बेटियों से भी छोटी। मुझे उसे देखकर तरस आने लगा। खूब बहस के बाद बहरहाल उस लड़की को कबूल कर लिया गया। उस बच्ची को देखकर मुझे उस पर तरस आया। मेरा बीमार देवर उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था। वो मासूम सी बच्ची भला उसकी क्या खिदमत कर सकती है। अगर मेरे देवर ने शादी ही करनी थी तो किसी हम उम्र लड़की से करता। मेरा दिल जब जब उस लड़की को देखता अंदर तड़पने और मचलने लगता। सफ़ेद रंग, खूबसूरत नैन नक्श लिए वो दिल में उतर जाने का हुनर रखती थी। वो खामोश सी मेरे देवर के साथ खड़ी सबको टुकर टुकर देख रही थी। देवर के साथ वो उसकी बेटी लग रही थी। मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन सा होने लगा था। मेरी बेटियों को भी इस कमसिन बच्ची पर तरस आ रहा था। बहरहाल वो देवर के साथ उसके कमरे में चली गई, मगर अगले 10 मिनट बाद ही भागती हुई बाहर आई। चेहरे का रंग फक था। घबराई हुई कहने लगी, जो अंकल मुझे लेकर आए थे उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें सांस नहीं आ रहा। मेरा शौहर और दूसरा देवर ये सुनकर अंदर कमरे में भागे। मेरे देवर की तबीयत बिगड़ रही थी। जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। 2 घंटे बाद ये खबर मिली कि देवर का इंतकाल हो गया है। हम सब पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम सब रोने लगी, लेकिन वो लड़की चुप थी। उसकी कौन सी हमारे देवर से दिली वाबस्तगी हुई थी, शायद इसलिए उसे रोना नहीं आ रहा था। मेरे शौहर और देवर रोते हुए घर में दाखिल हुए। वो लड़की कुछ देर कोने में खड़ी हम सबको देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। हमारे घर तो सुबह तो रोना धोना जारी रहा। मैं देवर की तदफीन से पहले उसके कमरे में गई तो वो बच्ची बेफिक्र सोई हुई थी, जिसे ये तक नहीं पता था कि वो बेवा हो चुकी है। मेरा दिल उसके बारे में सोचकर तड़पने लगा था। मैंने उसे जगाया, अपनी छोटी बेटी का सादा लिबास उसे पहनने के लिए दिया। वो चुपचाप से मेरी सारी बातें मानती गई।
बाहर आकर खामोशी से बैठ गई। देवर की तदफीन के बाद भी वो बच्ची हमारे पास ही रहने लगी, मेरी बेटियों के साथ ही सोने लगी। उसके साथ कभी हंस बोल लेती तो मेरी देवरानी आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती, कहती इद्दत में है, शौहर का मरे हुए महीना नहीं हुआ और देखो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे अपनी देवरानी की सोच पर अफसोस सा हुआ था। इस 14 साल की बच्ची को ना शादी का इल्म था, ना बेवगी की खबर, इद्दत की भी उसे होश नहीं थी। मैंने कहा वो बच्ची है, उसे तो अब तक मालूम ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है और वह किस जुल्म से गुजरी है। कहने लगी, मैं तो कहती हूँ इस लड़की को चलता फिरता करो, हम भला क्यों पालते रहें। मेरी देवरानी नाक चढ़ाई ही कहकर चली गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि इतनी सी कमसन बच्ची को बेयारो मददगार छोड़ा जाए। इस बच्ची के यहाँ रहने पर अब तक ना मेरे शौहर ने एतराज़ किया था, ना ही देवर ने, लेकिन ना जाने क्यों मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर अपना हर काम अब इस बच्ची से अपना हर काम कहने लगा। खाना भी उसी से मांगता, अपने कपड़े भी उसी को इस्त्री करने का कहता। मुझे लगा जैसे अपनी बेटियों को समझता है, शायद वैसा ही दिल इसका इस बच्ची के लिए एहसास रख रहा है। मेरे सर पर बम तो उस वक्त फटा जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैंने कहा, तुम सोच कैसे सकते हो, वो 14 साल की है और तुम्हारी बेटियां उस बच्ची से भी बड़ी हैं, वो तुम्हारी बेटी जैसी है। कहने लगा, बेटी तो नहीं है ना, एक बेवा को सहारा देना कोई बुराई नहीं है और मैंने उसे अपनी बेटी की नज़र से देखा भी नहीं है। हो सकता है जो बेटे की ख्वाहिश मेरी तुमसे पूरी नहीं हुई वो इस लड़की से हो जाए। मैं तो शौहर की बातें सुनकर शशदर सी रह गई थी। मैंने कहा, वो लड़की नहीं है बल्कि कमसिन सी बच्ची है, वो शादी की भी काबिल नहीं थी। एक जुल्म देवर ने उस पर किया था लेकिन पूरा ना हो पाया, अब दूसरा तुम करना चाहते हो। उस इतनी सी बच्ची से तुम्हें औलाद पैदा करते हुए शर्म नहीं आएगी। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठा, कहने लगा, अब अगर कुछ भी तुमने कहा मैं तुम्हें इस उम्र में भी तलाक दे दूंगा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा बल्कि तुम्हें बताया है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा शौहर ये कहकर चला गया। अगले रोज़ मैंने उस लड़की को चादर पहनाई और अपने साथ बाहर ले गई। शाम को ही वापस घर लौटी। सब लोग मेरी वजह से परेशान थे। मेरा शौहर मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, इस लड़की को लेकर कहाँ गई थी। मैंने कहा, पीर साहब के पास लेकर गई थी। उस लड़की के आते ही मेरा देवर मर गया। मुझे डर सा लगने लगा कि कहीं ये मनहूस ना हो। तुम इससे शादी करना चाहते हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी देवर जैसा हो जाए। ये बात सुनकर मेरा शौहर कुछ मुतज़ब्ज़ब सा हुआ, कहने लगा, क्या कहा पीर साहब ने? मैंने कहा कि पीर साहब ने भी वही कहा जिसका मुझे डर था। कहने लगे, इस लड़की के पैदा होते ही इसके बाप की नहुसत इस पर पड़ गई थी जो अब तक बाकी है और अगले 8 साल तक जारी रहेगी। 8 साल से पहले जो शख्स भी इससे शादी करेगा वो निकाह के 1 घंटे के अंदर मर जाएगा। हाँ, 8 साल बाद इसकी शादी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि इसे 8 साल तक तालीम हासिल करवाई जाए और कोई इस पर गलत निगाह भी ना डाल सके, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर खामोश हो गया, कुछ खौफजदा भी। मैंने उस लड़की को स्कूल में दाखिल करवा दिया। 2 साल बाद मेरी बड़ी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का डॉक्टर था, उन्हें जहेज़ की भी कोई लालच नहीं थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। 2 साल के वक्फे से मैं 4 बच्चियों की शादियां मैंने कर दी। सबके शौहर खुद कफील थे। बिना जहेज़ के ही मेरी बेटियां रुखसत हुई थीं और मेरी बेटियां अपने घर में खुश थीं। 8 साल का अरसा भी गुजर चुका था। मेरे शौहर ने दोबारा मुझसे कहा कि अब तो 8 साल गुजर चुके हैं, अब मैं इससे शादी कर सकता हूँ। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा कि हाँ, कर लो, तुम बिल्कुल कर लो इससे शादी, लेकिन क्या ये नहीं पूछोगे कि लड़की का माँ बाप कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो यतीम खाने से आई है, वहाँ कहाँ किसी के माँ बाप का पता होता है। मैंने ताज्जुब से उसे देखा और कहा कि मैं इस लड़की के माँ बाप को जानती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुतअज्जब सा हुआ था, कहने लगा, तुम कैसे जानती हो? मैंने कहा, आज से 15 साल पहले मैंने अपनी 5वीं बेटी को जन्म दिया था। मेरी बात पर वो कुछ नाफहम सा हुआ, कहने लगा, हाँ, वो तो उसी वक्त मर गई थी। मैंने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, वो मरी नहीं थी, मैंने उसे खुद यतीम खाने के झूले में डाला था, क्योंकि अगर 5वीं बेटी के जिंदा होने का भी तुम सुन लेते तो तुम मुझे तलाक दे देते, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया
اور دیکھو اللہ کا قانون، آج 14 سال بعد میری بیٹی کسی طرح سے بھی میرے گھر لوٹی ہے۔ یہ لڑکی تمہاری سگی بیٹی ہے جس کے لیے تم پچھلے 8 سالوں سے غلط ارادہ رکھتے ہو۔ سوچو، اگر یہ گناہ تم کر لیتے تو خود سے نظریں بھی نہ ملا پاتے۔ میری بات سن کر میرا شوہر تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ جب میرے شوہر نے 8 سال پہلے اس بچی سے شادی کرتے ہوئے مجھے پوچھا تھا اور مجھے طلاق کی دھمکی دی تو نئے سرے سے سن کر مجھے پھر سے اپنی بیٹی کی یاد آنے لگی۔ یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ پل بھر کو میرے سامنے اس بچی کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ بھی تو یتیم خانے سے آئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میری بیٹی کی بھی شادی اپنی عمر سے دگنے تگنے شخص سے تو نہیں کر دی گئی۔ میرا دل تو یہ سوچ کر ہی ایسے ہو گیا جیسے کسی نے کن چھری سے کاٹا ہو۔ مجھ پر ایسی بدحواسی چھائی، دل ایسا تڑپا، میں نے فوراً سے اپنا پرس نکالا اور وہ ایڈریس ڈھونڈنے لگی۔ ایڈریس دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ وہ میرے ہی گھر کا ایڈریس تھا۔ اللہ نے میری بیٹی باعزت مجھے لوٹا دی تھی، اس لیے میں نے یہ ناٹک رچایا تاکہ اسے اچھی تعلیم دلوا سکوں، اسے اس کا وہ حق دے سکوں جس سے وہ آج تک محروم تھی۔ یہی بات اگر میں اپنے شوہر کو اس وقت بتاتی تو وہ کبھی میری بیٹی کے لیے پیسے نہ خرچتا، شاید اسے بھی برا بھلا ہی کہتا جیسے باقی بیٹیوں کو کہتا تھا۔ آج دھاڑے مار مار کر رونے کی باری میرے شوہر کی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج وہ میرے بجائے خود پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھ پر خدا کی لعنت ہو، میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچتا رہا۔ میری گھٹیا سوچ نے میری بچی کو یتیم خانے تک پہنچا دیا۔ اگر اللہ میرے بھائی کی جان نہ لے لیتا تو میں تو بن موت ہی مارا جاتا۔ اگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی گناہ کر بیٹھتا تو تب بھی مر ہی جاتا۔ میرے ظلم کی خدا نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ کاش کہ میں نے اپنی بچیوں کو زحمت کے بجائے رحمت سمجھا ہوتا۔ مجھے ان کی جہیز کی فکر ستاتی رہی، اسی لیے وہ مجھے ہمیشہ چپتی رہیں۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ جو رب بیٹی دیتا ہے وہ اس کا نصیب بھی بھیجتا ہے۔ میں نے ان پر کوئی پیسہ نہ خرچا، لیکن وہ صابر تھیں، خود سے محنت کرنے لگیں۔ اللہ نے میری 4 بیٹیوں کو بنا جہیز کے ہی اچھے گھرانوں میں رخصت کر دیا، اور میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا ہے جو اب تک نکما ہے اور باپ کی کمائی پر پل رہا ہے۔ کاش کہ ہم رب کی مصلحت کو سمجھ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اس کہانی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔